Good morning, students. Myself Ravi Kumar from Subir Singh Children Academy. In this class, we will take the practical knowledge of PowerPoint. Students, you also know about PowerPoint, that in PowerPoint is a presentation software, and in this presentation types of software we are going to make different types of slides. इस PowerPoint के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड्स को तैयार करते हैं और अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट करते हैं. इसमें एनिमेशन, custom animation, different types of scratches cards, different types of slides, सारे चीज़ को ज्वाइन किया जाता है. साउंड्स, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, we can also add in it. So let's start in the practical class. Dear students, now you have to go here in the bottom. This is your taskbar, and with the help of this one you can Microsoft PowerPoint. This is your Microsoft PowerPoint, and this one is your interface of PowerPoint. Interface of PowerPoint. I have already told you that PowerPoint 2010 is a presentation software that allows you to create dynamic slide presentations that can include animation, narration, images and videos. It is a graphical software package that is used for creating effective multimedia presentations. Students, it is a part of Microsoft Office 2010 suite, which provides various tools, wizards, templates, themes and predefined layouts to create professional presentations. We all know about the starting PowerPoint, कि हम PowerPoint को कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, and after that in the last Microsoft PowerPoint 2010. On a starting PowerPoint, a blank presentation named Presentation 1 देख सकते हैं आप यहाँ पे. Presentation 1 के नाम से ये it will appears on the screen. Creating a blank presentation. तो blank presentation आपको ऐसे ही मिलेंगे. इसको कहते हैं, ये देखिए डॉटेड लाइन्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर्स. यू नो प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर आर बॉक्सेस with dotted or hatch marked borders that are part of the most slide layouts. You know what is placeholder? We can also learn about what are placeholders. We can write here answers very easily. Placeholders are boxes with dotted or HATCH hatch marked borders that are
part of the most slide layouts। हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर का ये आंसर लिखा है, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, बी मैंने बोल्ड, इसको बोल्ड कर लेंगे, एंड यू कैन आल्सो मेक फ्रॉम हियर कलर, increase the size, and this one is a question your place water placeholder, and with the help of F5 key you can make this one। We have to make some arrangement, थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना होगा। अब आप F5 क्लिक करिए। What are placeholders? Placeholders are boxes with dotted or hatched marked borders that are part of the most slide layouts। और placeholder किसको बोलते हैं मालूम है? ये जो डॉटेड आपको लाइंस दिख रही हैं इसी को प्लेस होल्डर कहते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन में दिख रहा है आपको प्लेस होल्डर, इसी को कहते हैं प्लेस होल्डर। ओके, वी विल लर्न फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये आपका जो है सबसे पहले जो ब्राउन कलर दिख रहा है ये आपका टाइटल बार है। यहाँ पर ये आपका क्लोज बटन, रिस्टोर बटन, मिनिमाइज बटन, we can also call the restore button as maximize button, और ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, undo बटन, redo बटन, सेव, एंड दिस वन इज योर फाइल टैब है ना, ये आपके फाइल टैब है, इसमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ options given here। Also you can look here, save, save as, open, close, information, this one is your active product, protect presentation, check for issue, manage versions। इसमें से आपको no need to take, recent means recent files, new means the file which you are going to क्रिएट द न्यू, जो आपको फाइल नई लेनी हो तो उसके लिए आपको न्यू दे रखा है, रिसेंट जिसमें आपने वर्क अभी किया है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने प्लेस होल्डर के बारे में बताया तो प्लेस होल्डर को अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यू ऑल्सो नो द शॉर्टकट की Ctrl+P। नेक्स्ट इज सेव एंड सेंड। सेव इसको एक जगह पे आप स्टोर कर देंगे और सेंड कहीं आगे फॉरवर्ड करना है। हेल्प ऑप्शंस एग्जिट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस वन इज योर होम टैब, इंसर्ट, एंड दिस वन इज योर डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। इट मीन्स देयर आर 9 menu bars, or you can say the menu tabs are given here. 1 file, next home, insert, design, transitions, animations, slideshow, review, and view. There are different types of menu bars which are given in the slideshow. Okay, come to the next point. We have already learned about the file tab. Next is the home tab. In the home tab you can look here, clipboard, slides, font, paragraph, drawing, and in the editing. It means again 5 main menu bars are given. यहाँ क्लिपबोर्ड में दे रखा है आपके पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। कट
paste, cut, copy and format painter, and this one is your clipboard. You know about clipboard? Clipboard क्या होता है? Clipboard are the temporary storage locations. Clipboard are the temporary storage locations where you have to write as once. Clipboard वो स्थान होता है जहाँ पर टेम्प्रोरी स्टोरेज लोकेशंस किया जाता है. आपको कट कॉपी पेस्ट आप एक बार ही करेंगे. जिस किसी भी चीज़ को आप कॉपी करेंगे वो सारी की सारी टेम्प्रोरी स्टोरेज लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ. ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये क्लिपबोर्ड एम्प्टी, कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स. कॉपी और कट आइटम्स विल कलेक्ट हियर. जो भी क्लिपबोर्ड एक टेम्प्रोरी स्टोरेज लोकेशन से वेयर यू हैव टू स्टोर द टेम्प्रोरी फाइल्स. मीन्स यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लिपबोर्ड एम्प्टी, कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स. यहाँ पे कट या कॉपी ये दोनों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन आप करेंगे, आइटम्स को कलेक्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्टोर मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर. What is computer? Now I am going to copy this one. Control plus C. देखिए C करते ही देखिए कंप्यूटर यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंप्यूटर को यहाँ से अगर पेस्ट करते हैं तब भी पेस्ट हो जाएगा आपका. और अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस V करेंगे तब भी पेस्ट होगा आपका. Am I right? वी हैव द बोस्ट ऑप्शंस. पेस्ट करने के लिए आपको बार बार अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप योर कर्सर एट द एंड ऑफ योर क्वेश्चन, एंड ऑफ योर डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू कॉपी और जस्ट प्रेस द एंटर की. और यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड में यहाँ पर आपको मिलेंगे जस्ट पेस्ट. तो ये आपके कॉपी ऑप्शन है. सपोज इफ यू आर कटिंग द सेम पार्ट, सेम इसी चीज़ को कट करेंगे. अगर आप कट के लिए शॉर्टकट की आपको मालूम है, कंट्रोल प्लस एक्स, एंड अगेन इन द सेम पार्ट यू हैव टू प्लेस योर कर्सर एट द एंड ऑफ योर डेस्टिनेशन और एंड ऑफ योर क्वेश्चन मार्क एंड जस्ट प्रेस द एंटर की फ्रॉम योर कीबोर्ड. अगेन यू विल ऑब्जर्व the same thing in the clipboard. The cut items are going to collect in the clipboard part and just you can press Ctrl plus V from your keyboard. I hope that you are getting understood. यानी clipboard एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर आपको कट या कॉपी की सारे आइटम्स को आप यहाँ पे कलेक्ट आपको दिखाई देगा. क्लिपबोर्ड एक टेम्प्रोरी स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे कट या कॉपी के सारी फाइल्स आपके स्टोरेज होती हैं. एम आई राइट? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज आफ्टर क्लिपबोर्ड यू कैन आल्सो, यहाँ से कट कर सकते हैं आप यहाँ से, और क्लिपबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से ले सकते हैं. कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देता है क्लिपबोर्ड इन विच मेन्यू यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्लिपबोर्ड. आंसर इज होम टैब. इन द होम टैब क्लिपबोर्ड विल बी अवेलेबल. और क्लिपबोर्ड में आपके पेस्ट है, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर. अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है ये देखिए.
फॉर्मेट पेंटर। सपोज हमने फिर से लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, यहाँ से हमने इसका साइज़ को थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से हमने इसको येलो कलर पेस्ट किया। अब हमें फॉर्मेट पेंटर कैसे वर्क करता है ये ध्यान देंगे। फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एक्स। सिंपली सेलेक्ट द रिटन पार्ट, लिखी हुई चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आप कर्सर के साथ में ये ब्रश का शेप आ गया। जिस स्थान पे आप इसको लिखना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करिए और आप अब आंसर लिखिए अपना। क्या समझ में आया आपको? समझ में ये आया कि हमने जो कंप्यूटर की जो साइज लिया था कितना 66, ये देखिए यहाँ पे 66 नंबर है ना, फॉन्ट साइज जिसको कहते हैं फॉन्ट साइज। ये जो हमने कंप्यूटर में देखिए कर्सर हमने डाला तो यहाँ पे साइज दिखा रहे 66, यहाँ भी डालेंगे तो ये भी आपको 66 दिखाएगा। और कलर भी आपके सेम टू सेम मैच करेगा। ये है फॉर्मेट पेंटर, मीन्स आपके ऊपर की जो भी फॉर्मेटिंग आप करेंगे वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे कैप्चर करेगा। इसी को कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। और या क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी आपको मालूम है। नेक्स्ट क्लिपबोर्ड के बाद है स्लाइड्स। स्लाइड्स में आपको लेआउट है। लेआउट में वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डिफरेंट स्लाइड्स। यहाँ पे आपके डिफरेंट स्लाइड्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड अ डिफरेंट स्लाइड्स, आप यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स ले सकते हैं। लेआउट में से टाइटल स्लाइड, अगर आपको अपने स्लाइड में जो है पावर पॉइंट में जो भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसमें आपको स्लाइड्स शो करना होगा तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइटल स्लाइड। इट मीन्स आप अपने प्रेजेंटेशन में टाइटल को कैसे व्यू करना चाह रहे हैं। तो ये दो टाइटल दे रखे हैं, मेन टाइटल, सब टाइटल। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइटल एंड कंटेंट। ऊपर बॉक्स दिया हुआ है प्लेस होल्डर, मैंने बताया था फर्स्ट में कि इस डॉटेड बॉक्स को कहते हैं प्लेस होल्डर। एंड दिस वन इन द डाउन कंटेंट। इस कंटेंट में आप यू आर ऑब्जर्विंग सम आइकन्स। ये आइकन्स आपको जो है ग्राफ्स के लिए, पिक्चर्स के लिए, एनिमेशंस के लिए या रिटन पार्ट समथिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन हेडर। ओके, टाइटल स्लाइड और सेक्शन हेडर में डिफरेंस है। टाइटल स्लाइड में आप बॉक्सेस को डिफरेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे, या आप अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस इसको आप एक डिलीट भी कर सकते हैं, एक सिंगल रख सकते हैं। बट इन द सेक्शन हेडर में आप इन दोनों को ज्वाइंट में काम करना होगा। नेक्स्ट है टू कंटेंट, मीन्स इफ यू वांट टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू टैब्स और टू मेन्यू बार्स देन इजीली यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन। आप अपना यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम मेमोरी। यहाँ पर रैम मेमोरी के बारे में शो करिए, यहाँ पर रोम मेमोरी के बारे में। सेम वे इन द सेम कंपैरिजन, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस हो गया है, आप यहाँ पर भी अपना कंटेंट को ब्रीफ कर सकते हैं। टाइटल ओनली, केवल टाइटल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था टाइटल स्लाइड में केवल टाइटल आपको दिखाना है तो आप यहाँ पर टाइटल दिखा सकते हैं। और इस ब्लैंक एरिया में व्यू मेनू में जाके आप अपना टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हैं, या इंसर्ट टैब में से भी आप टेक्स्ट बॉक्स अपना यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यू कैन ऑल्सो चूज ब्लैंक प्रेजेंटेशन फॉर ड्राइंग्स, या फिर किसी अदर पर्पज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इंसर्ट में आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे, डिजाइन में आपको कुछ डिजाइन्स मिलेंगे वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। कंटेंट विद कैप्शन, यहाँ पर अपना कैप्शन डालिए, कंटेंट डालिए, ड्राइंग्स डालिए। पिक्चर विद कैप्शन, कैप्शन के साथ भी अपना डाल सकते हैं। तो दिस वन इज फ्रॉम लेआउट। ओके, ये सेम चीज आपको लेआउट जो है
यहाँ पर भी मिलेगा। इसको कहते हैं स्लाइड शॉर्टर। दिस वन इज योर लेआउट। और ये जो मैंने सेलेक्ट किया है आपका ये टाइटल कंटेंट है, फर्स्ट टाइटल स्लाइड। तो ये टाइटल स्लाइड को बोलते हैं नॉर्मल स्लाइड। इट मीन्स फर्स्ट, पहली जो है विंडो ये आपकी नॉर्मल स्लाइड के लिए है। सेकेंड वन फॉर स्लाइड शॉर्टर, मीन्स ये कंप्लीट बॉक्स लेआउट। एंड थर्ड वन इज फॉर स्लाइड शो, इसको बड़े करके दिखाना, शॉर्टकट की F5। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Okay dear students, come to the next point. This one is for reset. ये देखिए रीसेट हो गया, एक बार और प्रेस करेंगे रीसेट को, यहाँ पे क्लिक करिए। एंड दिस वन इज फॉर सेक्शन न्यू स्लाइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड आपके पूरे दे रहे हैं, न्यू स्लाइड एंड लेआउट। उसके बाद है आपके ये फॉन्ट, ये किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट शैडो, हेडिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इंक्रीमेंट साइज, फॉन्ट डिक्रीमेंट साइज। This one is for change case and this one is for font color। ये आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ में भी आप देख सकते हैं यहाँ से, इनको कहते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग्स। क्या यूज है देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स नेम, एप्पल, कीबोर्ड। हम कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के नेम लिखते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से सिंबल बन के आ रहा है ये। तो इसको कहते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर आपको नंबरिंग चेंज करना होगा तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, ये भी फिर कन्वर्ट हो गया। इफ़ यू वांट टू चेंज then again change the bullet and numbering. If you want to again change, जो भी आपको चेंज करना हो आप बड़ी आसानी से आप यहाँ से अपना चॉइस करेंगे और ले लेंगे। लेकिन ध्यान रहे किसी भी ऑप्शंस को लेने चॉइस करने से पहले आप अपने लिखी हुई चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और आप उसको चॉइस करेंगे। सेम वे फिर से सेलेक्ट करेंगे और आप चले जाएंगे अब नंबरिंग में। नंबरिंग में भी आपको देख सकते हैं सिंपल 1 2 3 ब्रैकेट के साथ 1 2 3, रोमन में, फिर ABC ब्रैकेट, सेम सीन। लिखी हुई चीज़ को पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर आप जहाँ पे क्लिक करेंगे आपके नंबरिंग ऑटोमेटिकली आएंगे। एम आई राइट? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको चेंज केस बताना है। चेंज केस के लिए आप करेंगे ओके डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे चेंज केस के बारे में। फॉर एग्जांपल हमने सामने लिखा आपके स्क्रीन पर कंप्यूटर। अब इसको हम थोड़ा सा पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या है? इंक्रीमेंट फॉन्ट साइज एंड दिस वन इज योर बोल्ड। अब आप सामने देख रहे हैं कि कंप्यूटर तो छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है
अब हम थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, ईच एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब ये क्या हो गया, पूरा स्मॉल लेटर में हो गया है। अब हमको कैपिटल लेटर में करना हो तो कैपिटल लेटर के लिए क्या करेंगे, चेंज केस, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3। अगर हम पूरे पेज में भी अगर हम स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं तब भी हम अपनी लिखी हुई चीज़ को शिफ्ट F3 के माध्यम से हम पूरे को कैपिटल लेटर कर सकते हैं। नहीं तो पहला फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर विल बी स्मॉल। ये देखिए पहला C कैपिटल है, रेस्ट आपका स्मॉल है, पूरा कैपिटल है, पूरा स्मॉल है, कंप्लीट फर्स्ट लेटर भी आपका स्मॉल है। इसको कहते हैं चेंज केस। कैसे किया हमने इसको, चेंज केस के लिए शॉर्टकट की CTRL प्लस F3। इसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। चेंज केस के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F3, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लाइन स्पेसिंग भी आप समझेंगे अब थोड़ा सा। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, आप शॉर्टकट की 4 और चेंज केस में आपको देखिए ये डिफरेंस जो दिख रहा है, इस डिफरेंस को कम करने के लिए है कि आप इन दोनों को पकड़ेंगे और लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। लेकिन इसमें तो लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है 1.0 फुल है। जीरो पॉइंट सिंगल, इट मीन्स अब इससे कम नहीं होगा। तो ये लाइन स्पेसिंग भी आप यहाँ से अपना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं थोड़ा सा इसको। अब देखिए लाइन स्पेसिंग, तीनों को लेते हैं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसमें कुछ फॉल्ट है इसमें। ओके, नेक्स्ट आपके लाइन टेस्ट। जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर, या राइट सेंटर, जस्टिफाई, इसके लिए है अलाइनमेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। This is a part of first PowerPoint. In the next class, we will learn about part of second PowerPoint. Okay? Thank you and have a nice day.